Welcome once again, everybody present here. And as you know, I had already started the chapter, The Rise of Nationalism in Europe. And first of all, I had given the introduction of the chapter in which I have discussed with you that what is the meaning of nationalism and what does it mean uh, in the context of Europe during 18th and 19th century, and how this nationalism worked as a guiding force for establishment of the nation state in place of monarchies or monarchical form of governments. And it was qualified by a series of four prints prepared by the French artist Frederic Soriot, in which he had dreamed a world. He has visualized a world of his dream in which he has thought that the world is having social and democratic republics. But that was his utopian visualization, because in 1848 only two nations, first the USA and second Switzerland, had totally turned into a fully democratic republics, nation state. But still many European areas were under the control of monarchical form of governments. And the first clear expression of nationalism came in France by the help of French Revolution. But you may know it clearly that even the French Revolution occurred in 1789 in France, but it did not lasted there long time, because it took 100 years since then to the France to become a full-fledged democratic nation. Even then, the question is asked into the examination that what sort of measures were taken by the French people to create a sense of common identity. As far as the meaning of a nationalist is concerned, generally people consider it as a love, devotion, pride, and loyalty to its nation. No doubt, love, devotion, pride, and loyalty to its nation is a nationalism. But if, in a broader sense, it means, and here we are studying about the nationalism in Europe, so here it should have the meaning that love, pride, devotion, and loyalty to its nation by a group of people who has desired to form a nation state. Nationalism is closely linked to the patriotism. Patriotism, matlab desbhakti, it also refers a love, devotion, and pride to your own nation. But if you are already having a nation, if you are already living a democratic nation state, and then you are having the notion of love, pride, and devotion to your country, then that will not going to adjust with the nationalism in Europe, because at that time of during middle 18th century, there were no nation states as we see today in European map. We see today Great Britain, we see today Germany, we see today Italy, but there were no countries like that at that time of period. So nationalism emerged out as a guiding force which culminated in establishment of nation state at the place of multi-dynastic monarchical rule, multi-dynastic empire. It means multinational dynastic rule at the place of multinational dynastic rule. Now let us here see the meaning of nation, the state, and nation state. नेशन क्या है, राष्ट्र क्या है, राष्ट्र किसे कहते हैं? क्या जमीन के टुकड़े को कहते हैं राष्ट्र, या वहाँ रहने वाले लोगों से राष्ट्र बनता है? तो अब यहाँ देखेंगे, रेफर्स ओनली टू ए सोशियो कल्चर एंटिटी। ये राष्ट्र का मतलब होता है एक सामाजिक, एक सांस्कृतिक और सामाजिक इकाई, सामाजिक और सांस्कृतिक इकाई, यूनिट, एंटिटी, अ यूनियन ऑफ पीपल शेयरिंग हु कैन आइडेंटिफाई कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली। तो नेशन जो है वो जमीन के टुकड़े से नहीं बनता है, वो क्षेत्र से नहीं बनता है, वो क्षेत्र में रहने वाले लोगों से बनता है। और ये एक तरह का मतलब सोशियो कल्चरल मतलब एंटिटी है, इकाई है। और किसी भी व्यक्ति का नेशन
उसके कल्चर और उसके सोशल एस्पेक्ट से पहचाना जा सकता है। दिस कंसेप्ट डज नॉट नेसेसरली कंसीडर फॉर्मल पॉलिटिकल यूनियंस। तो अब किसी क्षेत्र में वो लोग रह रहे हैं और उनकी कल्चर और सोशल एस्पेक्ट सेम है, कॉमन आइडेंटिटी वाले लोग किसी क्षेत्र में बहुत सालों से एक साथ रहते आ रहे हों, उनके मतलब डिसेंट पास्ट सेम हो, उनके मतलब फोर फादर सेम हो, उनकी कल्चर सेम हो, उनका लैंग्वेज सेम हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी गवर्नमेंट भी हो अपनी, वह सॉवरेन कंट्री के अंदर रहते हो, ये जरूरी नहीं है। वो एक सॉवरेन पॉलिटिकल यूनिट के अंदर रहते हो, एक स्वतंत्र राष्ट्र के अंदर रहते हो, उनकी एक अपनी सरकार हो भी सकती है और नहीं भी सकती है। अब जैसे कि आप यूरोप में देख लीजिए, यूरोप में जब कहा लिखा ही हुआ है मल्टी नेशनल डायनेस्टिक रूल, मतलब जो बड़े बड़े एम्पायर होते थे वो क्या थे, मल्टी नेशनल, मैंने नेशन था वहाँ, लेकिन वो लोग फ्री नहीं थे, उनके ऊपर राजा का शासन था, उनके ऊपर किंग का शासन था। तो मल्टी नेशनल जो थे, मतलब नेशंस जो हैं लोगों के समूह से बनता है जो किसी खास क्षेत्र में बहुत समय से एक साथ रह रहे आ रहे हो, उनके डिसेंट्स, उनके पास्ट सेम हो, उनके फोर फादर सेम हो, उनके कल्चर सेम हो, उनके इतने ग्रुप सेम हो, उनकी लैंग्वेज सेम हो, तो वो एक नेशन का निर्माण करते हैं। अब स्टेट क्या है, राज्य क्या है? टू ए लीगल एंड पॉलिटिकल एंटिटी दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ द फॉलोइंग। अब राज्य चार चीज़ों से मिलकर बनता है। अब उसमें क्या है, राज्य में एक मतलब क्षेत्र होना चाहिए, ज़मीन का टुकड़ा होना चाहिए, निश्चित बाउंड्री होनी चाहिए उसकी, उसके अंदर एक परमानेंट पॉपुलेशन होना चाहिए, माने एक उसमें पॉपुलेशन होता है, उसके बाद उसकी एक डिफाइंड टेरिटरी होती है कि इसके अंदर ही वो पॉपुलेशन रहती है, उसके बाद उसका बॉर्डर होता है, बॉर्डर के बाद दूसरा राज्य शुरू होता है, उसके अंदर एक गवर्नमेंट भी होती है। राज्य तभी कहेंगे जब उसकी अपनी एक सरकार होगी। और चौथा क्या है, कैपेसिटी टू इंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, और वो दूसरे राज्यों से अपना संबंध भी स्थापित कर सकता है। तो एक निश्चित भूभाग में, क्षेत्र में रहने वाले एक पॉपुलेशन जिसकी अपनी एक सरकार हो और वो सॉवरेन हो, वो अपनी शासन खुद चलाते हो, तो उसे राज्य कहेंगे, और ये अपने आस पड़ोस के राज्यों से रिलेशन भी स्थापित कर सकता है। तो नेशन अलग चीज़ हुआ, वो सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स हुआ, लोगों के समूह से बना, लोग भी किसी क्षेत्र में ही रहेंगे लेकिन उनकी अपनी सरकार हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नेशन कैसे लोगों के समूह से बनता है? नेशन ऐसे लोगों के समूह से बनता है जिनकी कल्चर सेम हो, जिनके लैंग्वेज सेम हो, जिनके पास्ट सेम हो, जिनके फोर फादर सेम हो, जिनके एथनिसिटी सेम हो, जो कॉमन आइडेंटिटी वाले लोग जब एक जगह पर बहुत सालों से रहते आते हैं तो वो एक नेशन का निर्माण करते हैं। हो सकता है उनकी अपनी गवर्नमेंट हो भी और नहीं भी। फिर नेशन है, तब फिर स्टेट बना। स्टेट चार चीज़ों से बन के बनता है। स्टेट की अपनी एक डिफाइंड टेरिटरी होती है, उसमें एक परमानेंट पॉपुलेशन होता है, उसकी एक गवर्नमेंट होती है और सॉवरेन होती है, और दूसरे राज्यों से अपना रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकती है। तो नेशन लोगों का समूह अब जब अपनी गवर्नमेंट के साथ किसी क्षेत्र में रहने लगता है, वही बनता है नेशन स्टेट। देखिए नेशन स्टेट क्या है? ए पॉलिटिकल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑटोनॉमस स्टेट इनहैबिटेड प्रीडोमिनेंटली बाय ए पीपल शेयरिंग ए कॉमन कल्चर, हिस्ट्री एंड लैंग्वेज। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक राजनीतिक इकाई है। राजनीतिक इकाई मतलब कि एक शासन तंत्र के अंदर रहने वाले लोगों के बारे में बताता है। ए पॉलिटिकल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑटोनॉमस स्टेट, मतलब एक संप्रभु राष्ट्र होता है, इनहैबिटेड बाय, ऐसे लोगों के द्वारा वो राष्ट्र बनता है जिनमें कॉमन आइडेंटिटी हो, उनके कल्चर सेम हो, उनकी हिस्ट्री सेम हो और उनके लैंग्वेज सेम हो। तो नेशन स्टेट किसे कहेंगे? नेशन स्टेट उसे नहीं कहेंगे जहाँ बहुत तरह के लैंग्वेज या बहुत तरह के, मतलब इंडिया का अभी बात हम नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर मतलब प्रीडोमिनेंटली जो अधिकांश जनसंख्या है उनकी कल्चर कॉमन होती है, लैंग्वेज कॉमन होती है, हिस्ट्री कॉमन होती है, और उनकी अपनी एक सरकार होती है, और वो सॉवरेन होती है, ऑटोनॉमी होती है, और अपना गवर्नमेंट खुद की रखती है। तो ऐसा राज्य जिसके अंदर रहने वाली पॉपुलेशन कॉमन आइडेंटिटी के साथ रहती है, तो उसे नेशन स्टेट कहते हैं। और यही यूरोपियन जो नेशन स्टेट आज हम लोग कहते हैं, आज जो जर्मनी जिसे कहते हैं, आज जिसे हम इटली कहते हैं, आज जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, ये सब नेशन स्टेट है। पहले कॉमन आइडेंटिटी वाले ग्रुप बड़े से एम्पायर में रहते थे, फिर उन्होंने मिल करके अपना एक देश बनाया, तब उसका नाम पड़ा नेशन स्टेट।
तो इस तरह से नेशन लोगों के समूह से बनता है, वो किसी खास क्षेत्र में बहुत दिनों से रहते आते हैं, उनके भी कॉमन कल्चर, लैंग्वेज, ये सब होता है, लेकिन उनकी अपनी सरकार होगी कि नहीं होगी ये कहना मुश्किल है। वो स्वतंत्र सरकार बनाकर अपना जीते हैं कि नहीं है, ये कहना मुश्किल है। स्टेट है, ये एक डिफाइंड टेरिटरी में रहने वाली जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, जिसकी अपनी सरकार होती है और वो सॉवरेन होती है और वो अपने अलग बगल के पास पड़ोस के स्टेट से अपना रिलेशन करती है। लेकिन अगर वो स्टेट में ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन लैंग्वेज रखते हैं, तब उसका नाम पड़ता है नेशन स्टेट। सो दिस आर द this is the explanation of nation state. Okay, then we will start further.